हेलो बच्चों, होप यू एंड योर फैमिली विल बी फिट एंड फाइन। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम करने वाले हैं। जब हम किसी शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, चाहे वो फ्रूट की हो, वेजिटेबल्स की हो या अन्य चीज़ों की हो, तब हम सबसे पहले शॉप पे जाने के सामान को लेने से पहले हम उससे, शॉपकीपर से उसका रेट पूछते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ग्रेप्स लेने हैं तो मैं सबसे पहले उस फ्रूट वाले से पूछूंगा कि इसका रेट क्या है, और वो कहेगा मान लो 100 रुपीज़ पर केजी। मैं कहूँगा नहीं, यह ज़्यादा है, मैं तो 80 रुपीज़ पर केजी दूंगा। और दुकानदार कहता है कि नहीं बाबूजी, आप 90 केजी ले जाए, 90 केजी पर केजी ले जाए। और हम मान जाते हैं और वो जो ग्रेप्स हैं हम 90 रुपीज़ पर केजी ले लेते हैं। तो इस आपस की चीज़ को जब हमने किया तो उसे हम क्या कहते हैं? शाबाश, सौदा, यानी कि बार्गेन। तो बच्चों, बार्गेन क्या है? अ बार्गेन इज एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज promise to do something for each other। सौदेबाजी एक समझौता है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए कुछ करने का वादा करते हैं। Someone is looking for work। कोई काम की तलाश में है। Waiting to be hired। काम पर रखने की प्रतीक्षा कर रहा है। He strike a bargain। वह सौदेबाजी करता है। But thinks it worthless। लेकिन उसे बेकार समझता है। He tries twice again। वह 2 बार फिर से कोशिश करता है। But doesn't like either। लेकिन उसे पसंद नहीं है। Finally, अंत में, in the last bargain, अंतिम सौदेबाजी में, when he is hired for nothing whatever, जब उसे किसी भी कीमत पर यानी कि फ्री में हायर करने के लिए कहा जाता है, he is happy as never before। वह इतना खुश हो जाता है जितना कि वह कभी पहले हुआ ही नहीं था। What is the bargain? तो इस कविता में सौदा क्या है, एंड वाई इज इट द बेस्ट, और यह सबसे अच्छा क्यों है, यही हम इस पोएम में समझेंगे। तो शुरू करते हैं पोएम द लास्ट बार्गेन। तो बच्चों, आज हम इसी आधार पर पोएम करने जा रहे हैं द लास्ट बार्गेन। पहले मैं एक लाइन बोलूँगा, उसके पीछे पीछे आपको उसी लाइन को दोबारा दोहराना है। बड़े मज़े से एंजॉय करते हुए ध्यान से आपको अब ये पोएम मेरे पीछे पीछे रिसाइट करनी। कम एंड हायर मी। Come and hire me. कम एंड हायर मी। Come and hire me. I cried while in the morning। I cried while in the morning. I cried while in the morning। I cried while in the morning. I was walking I was walking. I was walking I was walking on the stone paved road। on the stone paved road. On the stone paved road। On the stone paved road. Sword in hand the king।
sword in hand the king. Sword in hand the king Sword in hand the king. came in his chariot. Came in his chariot. Came in his chariot. Came in his chariot. He held my hand. He held my hand. He held my hand He held my hand. and said, And said. and said, And said. I will hire you with my power. 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 But his power counted for naught. 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 And he went away in his chariot. 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 In the heat of the midday. 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 The houses stood with shut doors. 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 I wandered along. I wandered along. I wandered along I wandered along the crooked lane. the crooked lane. The crooked lane. The crooked lane. An old man came out. An old man came out. An old man came out An old man came out with his bag of gold. 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 He pondered. He pondered. He pondered He pondered and said, and said. and said, And said. I will hire you with my money. 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 He waved his coin one by one. He weighed his coins one by one. He waved his coins one by one. He weighed his coins one by one. But I turned away. But I turned away. But I turned away. But I turned away. It was evening. It was evening. It was evening. It was evening. The garden hedge was all aflower. 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 The fair maid came out. The fair maid came out. The fair maid came out The fair maid came out and said, and said, and said, and said, I will hire you with a smile. 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 Her smile paled. Her smile paled. Her smile paled Her smile paled and melted into tears. and melted into tears.
tears and melted into tears. and melted into tears. And she went back alone into the dark. 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 Sun glistened on the sand. The sun glistened on the sand. The sun glistened on the sand. The sun glistened on the sand. And the sea wave broke waywardly. And the sea waves broke waywardly. And the sea waves broke waywardly. And the sea waves broke waywardly. A child sat playing with shells. 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 He raised his head. He raised his head. He raised his head He raised his head and seemed to know me and said, 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 I hire you with nothing. I hired you with nothing. I hire you with nothing. I hired you with nothing. From henceforward, From henceforward, from henceforward, from henceforward, that bargain struck, that bargain struck, that bargain struck. that bargain struck. In child's play made me a free man. 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 आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पोएम को रिसाइट किया है। अब हम एक एक लाइन करके इस पोएम की हिंदी करते हैं, मीनिंग समझते हैं और अच्छे से इस पोएम को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पर रख लो। आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय में चिल्लाया। यानी कवि सुबह सुबह चिल्लाया, बोला कि आओ और मुझे काम पर रख लो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, मैं पत्थर की सड़क पर जब चल रहा था। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग, अपने हाथों में तलवार थामे हुए। केम इन हिज चैरियट, राजा अपने रथ में आया। ही हेल्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ पकड़ा। एंड सेड, और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, मैं अपनी ताकत के बल पर तुम्हें काम पर रखूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी शक्ति मुझे महत्वहीन जान पड़ी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वह राजा अपने रथ में बैठकर वहां से चला गया। इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर की गर्मी में, द हाउसेस स्टूड विद शट डोर, मकानों के दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन, मैं टेढ़ी व तंग गलियों में घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम आउट, एक बूढ़ा व्यक्ति घर से बाहर आया। विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, वह अपने साथ सोने के सिक्कों का थैला लिए हुआ था। ही पॉन्डर्ड, उसने कुछ सोचा। एंड सेड,
और कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी। मैं तुम्हें अपने धन के बदले में काम पर रखना चाहता हूँ। He weighed his coin one by one. उसने अपने सिक्कों को एक एक करके तोला। बट आई टर्न्ड अवे। लेकिन मैं मुंह फेर कर वहां से भी चला गया। इट वॉज इवनिंग। संध्या का समय था। द गार्डन हेज वॉज ऑल अफ्लावर। बगीचों की बाड़ फूलों से भरी हुई थी। द फेयर मेड केम आउट। एक सुंदर लड़की आई एंड सेड, और बोली, आई विल हायर यू विद अ स्माइल। मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बदले में एक मुस्कान दूंगी। हर स्माइल पेल्ड। उसकी मुस्कान शीघ्र ही फीकी पड़ गई एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। वह अकेली ही अंधेरे में वापस लौट गई। द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड। सूर्य रेत पर चमक रहा था। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली। और समुद्र की लहरें मन चाहे ढंग से टकरा रही थी। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विद शेल्स। समुद्र तट पर एक बच्चा सीपियों के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड। उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड। और ऐसा लगा जैसे वह मुझे जानता है। और उसने कहा, आई हायर यू विद नथिंग। मैं तुम्हें बिना कोई परिश्रम के काम पर रखता हूँ। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। उस समय के बाद से वह सौदा हो गया और वह बच्चे के साथ खेलता रहा। ऐसा करके कवि ने अपनी आज़ादी को बनाए रखा। बहुत अच्छी तरीके से आपने ये पोएम कर ली है। इस पोएम के बीच में कई डिफ़िकल्ट वर्ड भी आए हैं। अब हम उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं, समझते हैं, ताकि ये पोएम हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है हायर। क्या कोई बच्चा बता सकता है इसका अर्थ? सर जी, काम पर रखना। वेरी गुड। नेक्स्ट है स्टोन पेव्ड रोड। सर जी, पत्थर की सड़क। वेरी गुड। चैरियट। सर जी, रथ। गुड। काउंटेड फॉर नॉट। सर जी, महत्वहीन। मिड डे। सर जी, दोपहर। नेक्स्ट है क्रुक्ड। सर जी, टेढ़ी मेढ़ी। शाबाश। पॉन्डर्ड। सर जी, सोचा। वेरी गुड। टर्न्ड अवे। सर जी, चला गया। हेज। सर जी, बाढ़। वेरी गुड। जो अफ्लार। सर जी, फूलों से भरा हुआ। शाबाश। मेड। सर जी, लड़की। शाबाश। पेल्ड। सर जी, कमजोर पड़ना। मेल्टेड। सर जी, बदल गई। हाँ। ग्लिसन्ड। सर जी, चमका। वेरी गुड। वे वार्डली। सर जी, मन मर्जी से। नेक्स्ट है शेल्स। सर जी, सीपियां। वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड्स फॉरवर्ड। सर जी, अब तक। वेरी गुड। और लास्ट है
बार्गेन स्ट्रक। सर जी सौदा हुआ। वर्ड मीनिंग आपने कर ली है। वर्ड मीनिंग के आधार पर अब आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बच्चों, अब हम देखते हैं कि आपको ये पोएम कहाँ तक समझ में आई। इसके लिए कुछ प्रश्न हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर्स देने हैं। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम? कविता में वक्ता कौन है? शाबाश, बताओ। Okay, sir. The speaker in the poem is poet. शाबाश। इस कविता में स्पीकर कौन है? पोएट, यानी कि कवि। नेक्स्ट है, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड। राजा के हाथ में तलवार सजेस्ट हमें सुझाती है क्या? वेल्थ संपत्ति, पावर शक्ति, मोर पावर देन वेल्थ संपत्ति से अधिक शक्ति। कोई बता सकता है? Yes, sir. Power, शक्ति. शाबाश। हमें राजा के हाथ में तलवार शक्ति सुझाती है। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी। बूढ़े व्यक्ति ने वक्ता को बहुत सा धन देने का प्रस्ताव रखा। Why did he turn down the offer? वक्ता ने उसका यह प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? बताओ। Sir ji, the poet turned down the offer because he could not find happiness and freedom in money. शाबाश। कवि ने वह प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि उसे धन से खुशी और आज़ादी नहीं मिल सकती थी। नेक्स्ट है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच? सागर तट पर बच्चे से बात करने के बाद वक्ता यानी कि वो कवि, उसने कैसा महसूस किया? सर जी, द स्पीकर फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। शाबाश। सागर तट पर बच्चे से बात करने के बाद वह कवि वक्ता प्रसन्न और संतुष्ट था। पूरी पोएम आपने समझ ली है, वर्ड मीनिंग भी आपने अच्छे से कर ली है और क्वेश्चन आंसर्स भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कर ली। बच्चों, घर जा कर के आपने इस पूरी पोएम की सभी एक्सरसाइज को और पोएम को भी रिवाइज करना है, अपनी नोटबुक में भी लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने बड़े ध्यान से इस पोएम को सीखा, समझा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।